the optics. Reflection, refraction, and in reflection we'll be studying mirrors and plane mirrors, spherical mirror, all that stuff. Whereas refraction, where you have refraction through a parallel glass slab, refraction through a prism, refraction through lenses, right? So what is reflection? Reflection of light is basically when light is incident on a shiny surface, it bounces back into the same medium, and this is called reflection. This is a normal. So in reflection, light is incident on shiny surface, it bounces back into the same medium, and such that angle of incidence is equal to angle of reflection. Second thing is that incident ray, normal, and the reflected ray all lie in the same plane. Incident ray, normal, and reflected ray all lie in the same plane. That is basically law of reflection. We see many things around us because of the regular reflection of the surface. The reflecting surface is shiny mirror-like, but if a surface is irregular, even then, law of reflection will be obeyed in all cases. Wherever the light is incident, angle of incidence would be equal to angle of reflection. That's called irregular reflection. मस्ट हैव नोटिस कई बार घर के अंदर लाइट नहीं आ रही सनलाइट डायरेक्टली बट स्टिल वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस विदाउट स्विचिंग ऑन द लाइट्स उसका रीजन ये होता है कि जो वॉल्स हैं दे आर ऑल रफ सो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन देम सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन देम दे स्कैटर और रिफ्लेक्ट द लाइट इरेगुलरली इसीलिए हमें वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस even though direct sunlight is not falling on into it. Then there's a small result that if you have a mirror and we rotate this mirror, this is the position number 1 of the mirror. The second position, if you rotate a mirror to an angle theta and we keep the incident ray the same, suppose this is normal number 1, this is the incident ray, this is the angle of incidence 1, and this is the reflected ray number 1. Once you shift when you rotate the mirror by theta, the new reflected ray rotates through angle 2 theta. This result you can remember. If a mirror is rotated through an angle theta, reflected ray will turn to an angle 2 theta if incident ray temperature. If a mirror is rotated through an angle theta, keeping the incident ray the same, then reflected ray turns to an angle 2 theta. This is the incident ray. Then image formation by plane mirror. If you have plane mirror, there is an object. One ray will go like this. It will be incident at 0-degree angle. It will be retracing its path. Another ray you can take like this. This is normal over here. It will be reflected like this. This ray and this ray both are reflected ray. These two rays will not meet at a point, but if you produce them backward, image will be formed somewhere here.
And these two triangles are similar, congruent. As a result, this distance equal to this distance. So in a plane mirror, image is formed behind the mirror at the same distance as the object is. This side rays exist is called real side. And this is in virtual side because rays do not exist on this side. This is virtual side of the mirror. तो जब भी इमेज वर्चुअल साइड में बनेगी तो वर्चुअल इमेज होगी, रियल साइड में बनेगी रियल इमेज होगी. So whenever we see ourselves in a plane mirror, it is the virtual image, same size, and it will be laterally inverted. Virtual image हमेशा erect होती है, upright. Virtual image would be always upright or erect. If you have ABC written, it will be like this, laterally inverted by a plane mirror. Then number of images. If you have two mirrors at an angle theta, there is an object placed which is equally inclined, symmetrically placed. Then the formula for number of images is 360 by theta minus 1. So in case you have two mirrors inclined at an angle 90 degree, number of images formed would be 3. 360 by 94, 4 minus 1, 3. तीन इमेज फॉर्म होंगी. यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट है, एक इमेज यहाँ बनेगी, एक इधर बनेगी और एक के perpendicular रहेगी. तीन images. So this is in case why they ask the question. Each person is the best. Then spherical mirror. You see, one more thing. If you have rays of light coming and converging to a point like this, right? So rays are converging into a point, say O, and now you place a mirror, plane mirror, in between the path of the rays. Then this is called virtual object. Because now these rays will not be actually reaching here. Because we have placed a plane mirror in between. But they were rather reflected and a real image is formed over here. So it may be possible that a plane mirror forms real image of a virtual object. A plane mirror can form real image of a virtual object. लिख लेना. मतलब we can't really say all the time कि that a plane mirror always forms virtual image. We can't say that. It may form a real image in some situations like this. तो अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों? बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होती हैं, बट यहाँ से रेज चल ही नहीं रही है, दैट्स व्हाई इट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा देन द इमेज फॉर्म कुड बी रियल ऑल्सो. Spherical mirror. If I draw a sphere of radius r, this is radius r, this is center of curvature, center of the sphere, and suppose this is a reflecting side. Then this kind of mirror would be called concave. Concave or converging mirror. Why this is spherical mirror? Because
This is a part of a sphere. That's why it's called spherical mirror. If this is the reflecting side, अगर reflecting side ये वाला होगा, in that case this would be convex or diverging. But also mirror is what this is P is like the whole of them. The point of the mirror is called whole of the spherical part. Spherical mirror is a part of a sphere. That is why it's called spherical mirror. तो Yes. सबकी आवाज बीच में चली जा रही है, आवाज जा रही है? बीच बीच में लगती बफ्ट आ रही है। अच्छा, एक मिनट। तो end to end of a mirror, this particular length is called aperture or diameter of the mirror. Aperture or diameter of the mirror. So as such, aperture or diameter of the mirror has nothing to do with the radius of curvature. They are not interrelated. Radius of curvature is this. Radius of curvature of mirror is basically the radius of the sphere whose mirror is a part. That is radius of curvature. Whereas aperture or diameter होगा end to end. End to end of a mirror is called aperture or diameter. Same focus, same radius curvature के कई सारे मिरर हो सकते हैं. बड़े aperture का हो सकता है, छोटे aperture का हो सकता है, जैसे कि ये है. This is a mirror of some, radius curvature R. ठीक है? Same radius curvature का I can have a mirror of larger aperture also. इसका aperture ज्यादा हो गया, जबकि इसका aperture इतना था. तो aperture is nothing to do with the diameter, the radius curvature of the mirror. They're not interrelated. Imaginary line passing through pole and the center of curvature is called principal axis of the mirror. Imaginary line passing through center of curvature and the pole. Pole is basically center of the mirror. It's called principal axis. ये principal axis है पूरा. And what is radius of, what is center of curvature? Center of curvature is center of the sphere whose mirror is a part. What is radius of curvature? Radius of curvature is radius of the sphere whose mirror is a part. Then you have image formation by concave mirror. This is a concave mirror. Concave को याद करने का तरीका है, K बन रहा है, गड्ढा, focus, and this is center curvature. One rail take parallel to principal axis. वो हमेशा कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा. इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट पास थ्रू फोकस, बट हमने यहाँ पे अज्यूम किया दैट अपर्चर ऑफ द मिरर इज नॉट वेरी लार्ज, तभी ऐसा होगा. अदरवाइज क्या होता है, इफ यू हैव मिरर्स ऑफ लार्जर अपर्चर, देन some rays which are far away from principal axis, they undergo multiple reflections and they actually do not converge at the correct focus, but
They converge before the focus. This kind of defect is called spherical aberration. But जो रेज नजदीक होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, they always pass through the actual focus. This is called spherical aberration. इस डिफेक्ट को कैसे रेक्टिफाई करते हैं? This defect is rectified by using parabolic mirrors. Parabolic mirrors are in the shape of parabola. ये पैराबोलिक मिरर है. पैराबोलिक मिरर में even the rays which are far away, they will converge at the correct focus. So जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें लार्जर अपर्चर का मिरर यूज होता है, they are actually parabolic, not spherical mirrors. So we rectify spherical aberration by using parabolic mirrors. एक ray parallel to principal axis passes through focus. We have assumed the ray is close to the principal axis. Another ray you can take through center of curvature also. Center of curvature जो भी ray जाएगी वो वापस वहीं से वापस आ जाएगी, because in a sphere any ray which is passing through center of curvature will be incident at an angle 0 degree. So it always retraces its path. It always retraces its path. Because angle of incidence is 0 degree. Normal incidence में angle of incidence 0 होता है. ये भी आ सकता है MCQ में. Suppose a ray is incident. Normally on a mirror, what is angle of incidence? The angle of incidence 90 नहीं होगा, 0 होगा. R भी 0 हो जाएगा. Angle of incidence and angle of reflection दोनों 0 degree होंगे. So then you have all those results कि अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो कहाँ पे इमेज बनेगा? वो तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए अब तो. यू हैव डन सो मेनी टाइम्स राइट फ्रॉम 10th क्लास. When object is placed beyond C, between C and F. एक सेंटर कवरेज से भी ले सकते हो तुम. So it will be diminished between C and F, inverted and real. Inverted हमेशा real ही होता है. Inverted, real, small in size, between C and F. And using this, you can also derive mirror formula. इसको हम Q ले लेते हैं, perpendicular ड्रॉप करते हैं, इसको ऑलमोस्ट P ले लेते हैं, फिर दो ट्राइंगल को सिमिलर करके we derive the formula also. वो तुम्हें याद करना होगा मिरर फॉर्मूला. 1 by F is equal to 1 by U plus 1 by V. Magnification will be height of image by height of object is equal to minus V by U. याद करने का तरीका है कि एक ही नेगेटिव साइन आएगा, या तो फॉर्मूले में साइन आएगा नेगेटिव तो उधर प्लस हो जाएगा. मिरर में यहाँ प्लस होता है और मैग्निफिकेशन में माइनस होता है. सर ये सारे फॉर्मूला साइन के साथ है ना? हाँ, बट इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे अलोंग विद द साइन ही करेंगे, सो दैट जो फाइनल आंसर आएगा वो अलोंग विद द साइन आएगा. सपोज तुमने यू को नेगेटिव 20 30 जो भी किया, वी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. एंड अगर वी नेगेटिव आता है इसका मतलब इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो जो आंसर भी आएगा वो अलोंग विद द साइन आएगा. साइन कन्वेंशन यू ऑलरेडी नो. दोनों लेंसेज एंड ऑप्टिक उसके लिए सेम ही है. लेंस में ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा और मिरर में पोल होता है.
डिस्टेंस रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से बिगिन करती है. द डिस्टेंसेस विल बी ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल और द ऑप्टिकल सेंटर. जो डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होंगी, they will be taken as positive. All the distances will be measured from the pole or optical signal. Distances in the direction of incident ray will be positive. Otherwise, like ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो ये सारा डायरेक्शन पॉजिटिव होगा. अगर बाई चांस ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव रह जाएगा. And the rays and distances in the opposite direction to the incident ray will be negative. Then perpendicular upward distances will be positive and downward will be negative. तो दिस इज साइन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो कि लेंस और मिरर दोनों में ही यूज होगी. बिकॉज चीज अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस, इट वुड मीन दैट इमेज इज वर्चुअल. इफ m इज नेगेटिव, इट मीन्स इमेज इज रियल. अगर मॉड m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब सेम साइज की इमेज बन रही है. अगर मॉड m की वैल्यू मोर देन 1 है, इसका मतलब इट इज मैग्निफाइड एंड लार्ज इमेज बन रही है. If mod m is less than 1, it is smaller in size, diminished. I think now we should resume with the tests. तुम लोगों ने किसी ने भी मेरे ख्याल से डुअल नेचर का टेस्ट नहीं दिया था ना. सर हम हमारे इसमें नहीं आया था, लाइक हमें पता नहीं कोई था आ बात रहा नहीं. है। न्यूक्लियस तो फिर डुअल अब तो आएगा ना, बोर्ड में तो आ रहा है. हाँ जी सर। तो नेक्स्ट टेस्ट डुअल का कर लें हम. ठीक है सर। कमिंग फ्राइडे या कमिंग वेडनेसडे. सर हमारे बोर्ड के प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं कल से। वो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, मुझे मालूम है ना. तो टेस्ट कब करोगे तुम लोग फिर? वो आ जाएंगे तुम्हारे, बोर्ड आ जाएंगे, और क्या है फिर बोर्ड आएंगे, तुम लोग बोर्ड चल रहा है. सर वीकेंड में कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फ्राइडे। मतलब टेंटेटिवली फ्राइडे का रख लो, सैटरडे को आके दे दो. ठीक है सर। ओके। जिसको ऑनलाइन देना है वो मेरे को मैसेज कर दो, जब सेंड कर दो. ठीक है सर। When object is placed at C, you know that image will be formed at C only. Same size, रियल इन्वर्टेड ऐसे भी बना सकते हो फोकस से लेके, और सेंटर कवरेज से भी ले सकते हो. एट सी ओनली, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड. बिटवीन सी एंड एफ में क्या होता है? बियॉन्ड सी। Hmm. Will it be enlarged? यस सर, एंड लार्ज एंड इन्वर्टेड। Yes. So it will be inverted, real, enlarged, beyond C. फर्स्ट केस का बिल्कुल रिवर्स हो जाता है. एक चीज और ध्यान रखना, जब भी रे डायग्राम बनाओगे एरो जरूर लगा देना. और मिरर लेंस को बहुत ज्यादा कर्ड मत बनाना, ऑलमोस्ट फ्लैट बनाना, उससे आंसर सही आते हैं. When the object is at focus,
in that situation, the rays will be parallel and image would be formed at infinity. इन्फिनिटी का नहीं कि हमें इन्फिनिटी जाना पड़ेगा उसको दिखने के लिए. इन्फिनिटी मीन्स इज वेरी रिलैक्स्ड. तुम्हारे आई लेंस को अकोमोडेट नहीं करना पड़ेगा. You can see anything at infinity, you can see with relaxed eye. ये इसका मतलब होता है. It will be again highly enlarged, real and inverted. So far we have seen that जब भी object beyond f होगा, f के लेफ्ट साइड में होगा, तब इमेज enlarge बनेगी. एक सेम साइज भी बन सकती है, डिमिनिश भी बन सकती है, बट विल बी फॉर श्योर रियल. So a concave mirror forms all types of images which are real, मतलब same size also, diminished also, and enlarged also. Now the last case when the object is between F and P. This ray will go straight, will pass through focus, this through center curvature. These rays will never meet, so we produce them backward, and as a result, highly enlarged virtual image is seen through the lens, through the mirror, sorry. So this is a virtual image. So when object is between F and P, virtual enlarged erect image is formed. Erect virtual image को हमेशा mirror या lens के through देखा जाएगा. So you have to see in the mirror. एक क्वेश्चन लिखो. Concave mirror, a concave mirror of focal length 50 centimeter, 50. Concave mirror of focal length 50 centimeter, 50 centimeter, forms an image which is four times the size of object, which is 4 times the size of object. Find position of object. Find positions of object. ऐसे लिखना है. Find positions of object. करो. तो कल कौन सा बोर्ड प्रैक्टिकल है? तो फिजिक्स का ही. अच्छा. ऑप्टिक्स का आएगा और पोटेंशियोमीटर का आएगा. अच्छा. Potentiometer, they might ask at which for maximum efficiency, where should be the null point? It should be at the center. ओके सर. And the potentiometer wire जितना ज़्यादा longer होगा उतना ही उसकी sensitivity ज़्यादा होगी. ठीक है? More the length of potentiometer wire, higher the sensitivity. उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सर हाँ. सर मेरे को लीव करना होगा. ठीक है. ओके. थैंक यू सर. Why do we prefer potentiometer or voltmeter? Voltmeter works on on deflection method, so it will never give you the correct reading of the voltage, whereas potentiometer works on zero deflection. It will give you the correct reading. पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू वोल्टमीटर. हाँ, because zero deflection में work करता है ना, वो current draw नहीं होता. When you are measuring the voltage, उस moment पे current draw नहीं होता है. और दूसरा जो सेकेंडरी सर्किट होता है उसमें कई बार हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में. क्यों लगाते हैं? सो दैट जो जिसका तुम्हें वोल्टेज निकालना है, सेकेंडरी सेल का ईएमएफ निकालना है, उससे लार्ज करंट ड्रॉ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो तो खुद ही बेचारा डिस्चार्ज हो जाएगा. सो हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में, सो दैट लेस करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट सेकेंडरी सेल से. ठीक है? और उस हाई रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब तुम रीडिंग लोगे उस समय पे
Galvanometer shows zero deflection, no current is drawn from the cell. So all these questions could be there. ओके सर, Viva में. थैंक यू। So इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कितना 4 times बताया ना मैंने, हाँ जी मैग्नीफिक. सर, आंसर 75 आ रहा है। दो दो आंसर आएंगे, दो दो केसेस लेने पड़ेंगे, बिकॉज एक बार एम को पॉजिटिव लोगे, एक बार एम को नेगेटिव लोगे. फोकल लेंथ कितना दिया मैंने, 5050। -50 हो जाएगा, ठीक है. तो यू टेक एम इज इक्वल टू -4, यू टेक एम इज इक्वल टू +4, टेक 2 केसेस, दो अलग अलग केस बनाओ, सॉल्व करो. तो जब एम नेगेटिव होगा, जिसका मतलब रियल इमेज बनेगी. और तुम्हें वैसे मालूम है, रियल मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है, रियल मैग्नीफाइड इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होता है. तो तुम्हारा आंसर 50 और 100 के बीच में आना चाहिए पहले वाले में. तो दिस इज -v/u होता है ना ये. तो v की वैल्यू हो जाएगी 4u. देन यूज द फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u. इसको यूज करो. तो 1/-50, 1/v कितना हो गया, 1/4u. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो तुम्हें लेना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन के साथ लोगे ना, माइनस ही लोगे. देखो क्या आ रहा है. कितना आ रहा है ये, well it's coming out to be between -50 and -100, because c is at -100, f is -50, the object between c and f are there. तो 62.5। हम्म. तो v हो जाएगा -50. लेकिन केस में मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव लोगे, मतलब वर्चुअल इमेज, तुम्हारा आंसर आना चाहिए बिटवीन -50 एंड 0 से कम आएगा. तो इस बार ये पॉजिटिव होगा, तो -v/u = +4 लेके सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है. देन इस बार नेक्स्ट टाइम में कितना आ रहा है आंसर, इस वाले में 50 से छोटा आएगा. थर्टी सेवन पॉइंट फाइव कितना. 37.5 आ रहा है। ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर में फोकस ऑन वर्चुअल साइड होता है, सेंटर कर्वेचर भी वर्चुअल साइड में होता है. तो ये डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो. रेडियस कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है.
and you know R is equal to 2s from both the mirror. The convex mirror case में wherever you place the object doesn't make a difference, and in all cases यहाँ से रे डाइवर्ज होगी. It's also called diverging mirror. Measure it's coming from the focus. On virtual side जो भी तुम रे बनाओगे इसको हमेशा डॉटेड बनाना है. Another ray will be from center of curvature. तो ये इसको रिट्रेस करेगी, and this ray and this ray both are diverging. They will never meet. So उसको आगे प्रोड्यूस करोगे जहां they appear to meet वहां पे diminished, virtual and erect image. Virtual, erect and diminished. कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा. कॉन्वेक्स मिरर में इफ यू वांट टू लुक एट द इमेज तो हमें मिरर के अंदर देखना पड़ेगा इमेज को. रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे नजर आती है. तो व्हेन यू वॉच अ मूवी इट इज ऑन द स्क्रीन इन अ सिनेमा हॉल, सो इट्स रियल इमेज. ऑब्जेक्ट को अगर तुम नजदीक लाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? If you move the object towards the mirror, in fact, थोड़ा सा साइज इमेज का बढ़ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा. Slightly increases. If an object is pushed or moved towards pole of a convex mirror, image would be virtual, diminished, erect, but its slight size would be slightly more larger. But हमेशा ऑब्जेक्ट से कम ही होगा. तो कॉन्वेक्स मिरर में m will be always positive and less than 1. असर्शन में एमसीक्यू में आ सकता है. कॉन्वेक्स मिरर में हम m पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा बिकॉज डिमिनिश्ड इमेज बनेगी. मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कॉन्वेक्स के लिए भी आ सकता है, कॉनकेव के लिए भी आ सकता है. दोनों नोट्स में तुम्हारे हैं, दोनों लर्न कर लेना बिकॉज दे माइट स्पेसिफाई दैट डिराइव मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर. दोनों तुम्हें पता होने चाहिए, कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक और चीज, जब भी लाइट मिरर लाइक सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी will be the same. There's no change in frequency, there's no change in lambda, and there's no change in speed. ये सारा सेम रहता है. V is equal to f lambda होता है. Speed of light will not change. Frequency of incident light or reflected will be the same. Wavelength भी सेम हो. क्या फर्क होता है? There's a phase change of pi. फेज 180 डिग्री से चेंज हो जाता है. Whenever light is incident or it's reflected by a denser medium, its phase undergoes a change by pi. pi का मतलब आउट ऑफ फेज हो जाता है, याद रखना ये. Refraction of light. If we have a rarer medium and then we have a denser medium, ray of light is traveling from rarer to denser medium, it will always bends towards the normal.
This is angle of incidence, this is angle of refraction. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ बोथ डिक्रीजेस इन डेंसर मीडियम. अगर रेयर मीडियम में या मीडियम नंबर 1 में स्पीड ऑफ लाइट v1 है, यहाँ पे v2 है डेंसर मीडियम में, वेवलेंथ λ1 है, यहाँ पे वेवलेंथ λ2 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी f है, तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब लाइट इज इंसिडेंट, लाइट इज पासिंग थ्रू सम सर्टेन मीडियम, उस मीडियम के पार्टिकल्स दे इंटरैक्ट विद द लाइट and they start vibrating with the same frequency. So that's a result. That's why the frequency is not changing. लेकिन रेड डेंसर क्या होगा? यहाँ पे V1 ज्यादा होगा, V2 डेंसर में कम हो जाएगा. V होता है f lambda 1 more than f lambda 2. तो lambda 1 will be more than lambda 2. डेंसर मीडियम में वेवलेंथ भी रिड्यूस हो जाती है. डेंसर मीडियम में वेवलेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी. और जिस फैक्टर से ये रिड्यूस होती है उस फैक्टर को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI. RI of a medium is basically represented by mu or n. It is speed of light in a given medium, ratio of speed of light in air to in a given medium. Refractive index is ratio of speed of light in air or space to that in a medium. जैसे कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी मटेरियल का 2 मान लेते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2 इन दैट मीडियम. मतलब उसकी स्पीड c/2 हो जाएगी उस मीडियम में, लाइट की स्पीड. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज a factor by which speed of light decreases in a given medium. तो अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 विच इज c/v1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 विच इज c/v2, तो स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ सेज दैट mu into sin theta equal to constant. ये स्नेल्स लॉ है. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से μ1, उसी मीडियम का एंगल से I. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, एंड उसी मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस. और साइन I बाई साइन R, इस फॉर्म में वैसे हम कम याद करेंगे इस फॉर्मूले को. बेस्ट होता है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल, उससे कई बार गलती नहीं होगी. म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, या तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, μ1 θ1 μ2 θ2. So how do you remember this? μ1 sin θ1 equal to μ2 sin θ2. सर This आपकी आवाज नहीं आ रही. हो रहा है ये. हाँ, यहाँ से तो जा रही है पूरी. बीच बीच में चले जाता है, ये कम तो आती है आवाज. इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी मीडियम का थीटा था, म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट. अब लेट्स सी इस फॉर्मूले से हमारा क्या और क्या रिलेशन आ सकता है. तो देखो, ये लिखिए हमने, इसमें सारा बस इसमें समझना है. ऑल दीज आर देन द नोट्स.
तो एज सच यहाँ पे क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर विल बी म्यू टू बाय म्यू वन। ठीक है, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, तो साइन आई बाई साइन म्यू टू बाय म्यू वन हो गया। इसको तुम बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको और एलॉबरेट करते हैं। म्यू टू क्या था, म्यू टू सी बाय वी टू। ठीक है, सी बाय वी टू, दिस इज सी बाय वी वन। तो इन V1 by टर्म्स, V2, हाँ इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट रिवर्स हो जाएगा, याद कर लेना। lambda 1 is equal to lambda 2, lambda 1 by lambda. v इक्वल टू एफ लैम्डा वन, वी टू इज इक्वल टू एफ लैम्डा टू, एफ एफ कट जाएगा। सो रिमेम्बर इट लाइक दिस, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। पूरा याद कर ले, साइन आई बाय साइन आर, सी बाय वी टू, सी बाय वी वन बाई वी टू, लैम्डा वन बाय लैम्डा टू। नोट्स को रिवाइज करो और वहां से फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लो, फॉर्मूलेस की लिस्ट बना लो अब। एंड आई वुड सजेस्ट कि पिछले 4 साल के पेपर्स तुम कर सकते हो पीवाईक्यूज में, उसके बियॉन्ड, बिकॉज नॉट इवन 4 ईयर्स से पहले तो सिलेबस काफी ज्यादा एक्स्ट्रा था, 40% सारा चेंज हो गया है। लाइट ऑल्सो फॉलोज पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जैसे अगर लाइट का ये पाथ है, this is, you can see this is red, this is denser because it is bending towards the normal, red to denser. लेकिन if a ray goes like this, it will take the same path, denser to rarer, move away from the normal. Light obeys principle of reversibility. Then refraction through a parallel glass slab. Parallel glass slab में is basically, you can say a parallel glass slab is a combination of two prisms. प्रिज्म में तुमने देखा होगा डिविएशन भी होता है, डिस्पर्शन भी होता है, व्हाइट लाइट ब्रेक्स इनटू 7 कलर्स, और एंगुलर डिविएशन भी आता है। लेकिन पैरेलल ग्लास स्लैब में ऐसा नहीं है, बिकॉज इट कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। तो जितना डिस्पर्शन पहले हाफ प्रिज्म से होगा उतना दूसरे से कैंसिल हो जाता है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये रे मीडियम चेंज नहीं होता, दिस रे वुड हैव गॉन लाइक दिस, बट इट मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंस है। यहाँ पे एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। उसके बाद यहाँ पे एक और नॉर्मल बनाओगे, एंड देन अगेन इट विल टेक द पाथ, दिस इज एमर्जेंट रे, फाइनल रे जो एमर्ज आउट कर रही है, लाइक दिस। सो नो डिविएशन, दिस इज द इनिशियल पाथ, दिस इज द फाइनल पाथ। तो पैरेलल ग्लास स्लैब में there is no deviation, unlike a prism where angle of deviation is there, the emergent ray। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इट कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन हो गया, तो जितना डिस्पर्शन डेविएशन यहाँ से हो रहा है वो इससे कैंसिल हो जाता है। टेंशन मैंने पढ़ा था ये। लेकिन इनिशियल पाथ द फाइनल पाथ में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है, उसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है।
This is R. This is also R. So when this is R, this will also be I by principle of reversibility. Then एक बार ये ट्रायंगल ले लोगे, इससे ये निकाल लो. cos थीटा Then you take this triangle और फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? This would be I minus R. I माइनस उसमें साइन माइनस R. तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला डेराइव हो जाता है. पहले वाले ट्रायंगल से, राइट ट्रायंगल से cos R it will be base AB by hypotenuse. यहाँ से AC आ जाएगा. AB is the thickness of the glass slab. Then this triangle, which is also right triangle, angle sin I minus R will be perpendicular, which is lateral shift ये वाला by hypotenuse AC. AC तो हमारे already है. So this was the formula for lateral shift. D by AC. अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं फिर क्या होगा इसमें चेंजेस? साइन हट जाएगा, cos R 1 हो जाएगा. If I and R are very small, sin theta is theta. तो ये बन जाएगा सिंपली I minus R in radian, not in degree. ठीक है? Cos R would be 1 because when R is small, cos 0 1 होता है. इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इस पे डेरिवेशन भी आ सकता है. वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि when you pass rays through a prism, it disperses also. इसमें dispersion भी होता है, 7 column break होता है, deviation भी होता है कि then why not in the parallel glass slab? Then TIR, total internal reflection, बहुत important है. This is denser medium. This is rarer medium. तो जनरली वी नो दैट कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है उससे रे चल रही है तो क्या होना चाहिए? डेंसर टू रेयर, रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना? ये हो जाएगा. I1 था तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर चली गई. अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें लाइक दिस, सेकेंड नॉर्मल, इस बार I2 I से बड़ा है तो ये भी एंगल बढ़ जाएगा. R2 और बड़ा होगा. तो इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. उस सिचुएशन में इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंस. एंड इफ यू फर्दर इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दिस रे विल नॉट, अभी तो ग्रेज कर रही है मीडियम में, उसके बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट होकर वापस सेम मीडियम में आ जाएगी. एंड दिस इज नथिंग बट TIR. इस बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. So if a ray is traveling from denser to rarer medium and it gets reflected back into the same medium, then it is called TIR, total internal reflection. तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन किस मीडियम से हो रहा है? रेयर मीडियम रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो ऐसे केस में देयर इज नो फेज चेंज. जबकि मिरर से अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें फेज चेंज होता है 180 से. बट whenever a ray of light
gets reflected by a rarer medium, there'll be no phase change. So TIR की कंडीशन आएगी, ये वाला डायग्राम आएगा, और you need to derive the risk condition also using this diagram. इस सिचुएशन में हम, दिस इज डेंसर, इसको लेते हैं म्यू रेयर। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी मीडियम का एंगल, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, उसी मीडियम का एंगल। साइन 91 हो जाएगा, तो साइन सी का फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इज ऑलवेज यूजफुल टू रिमेंबर दिस वे। न्यूमरेटर में हमेशा रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अनटिल अनलेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रेयर मीडियम एयर है, तो तुम 1/μ ले सकते हो, म्यू और बाय म्यू से करना बेटर है। और एल्स यू कैन राइट if mu r is 1 in case of vacuum or air, sin c would be 1/μ. किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है? Violet. हम्म नाउ यू कैन सी किस कलर का क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। ये डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, ये रिजल्ट याद कर दें। क्रिटिकल एंगल फॉर वॉयलेट कलर इज स्मॉलर कंपेयर टू क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर। उसी सिक्के में विबग्योर में यही हो जाएगा। तो वॉयलेट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल रेड कलर से छोटा होता है। मतलब अगर वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू प्रिज्म, देन मोस्ट लाइकली कौन से कलर्स TIR होंगे जिनका क्रिटिकल एंगल छोटा है? तो ये कलर्स आर मोर लाइकली टू गेट TIR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, whereas red, orange, yellow, they might be transmitted because अगर क्रिटिकल एंगल बड़ा है तो मतलब ट्रांसमिट होने का TIR नहीं होगा। कंडीशन फॉर TIR ये है, 2 मार्क का ये भी आ सकता है। The ray of light should travel from denser to rare, and second, angle of incidence has to be more than critical angle, where sin c equal to 1/μ। तो तुम लिखोगे वहां पे, whenever you write your answer in words, if you can support it by formula or some diagram, do that। मार्क्स नहीं कटेंगे। अदरवाइज तुम एक्सेप्ट करोगे भाई 70 में से हमारे 65 आ रहे हैं, 67 आ रहे हैं, कट पिट पिट के वो 60s रह जाते हैं। पूरा पूरा आंसर लिखना है, डेरिवेशन से भी कंप्लीट आंसर करना है। सुना तुम्हारा भी एग्जाम है कल, और 2 तक की। यस सर। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई क्वेश्चन हो तो मैं व्हाट्सएप कर देना, है ना, वाई से रिलेटेड। थैंक यू सर।